start going down, if the groundwater नीचे, if it is an, I said that it is in sea water and groundwater is here. आपका suppose sea water is here and then आपका groundwater यहाँ पे है, तो sea water will not enter. But when the groundwater started coming down, the sea water started intruding, and that will be a contamination of groundwater. हमारा पानी groundwater क्या हो जाएगा? Contaminate, and it is due to that. And several coastal region is facing such kind of problem. Several coastal region in India is facing. समझ में आ गया? Western coast and eastern coast of India is facing this kind of problem. Next हम लोग हमारे इंडिया को, India has been divided into 6,000 units, blocks. How many blocks? हम लोग केवल किसकी बात कर रहे हैं? ओवर एक्सप्लॉयटेशन से क्या प्रॉब्लम है? 6,000 blocks. In this 6,000 block, around 900 blocks are under the some critical situation. Some are what is in a critical, semi-critical, and severe. Understood? And इसमें से 9,000 blocks में से I said that 300 are what is in a, under the critical situation. जिसका मतलब कि आपको कह सकते हो कि 70 to 80%, 100% के आसपास क्या हो गया है? What is in a groundwater क्या हो गया? प्रॉब्लम में आ चुका है. Where the stage of groundwater development is between 70 to 100%, और problem is more, and then development is very much needed in this region. लेकिन कोई पूछने नहीं जा रहा है. So 900 unit में से 300 units I said that it is what? Critical, and then 600 units are I said that semi-critical, और 20-30 are what is in a severe critical. जैसे अभी आपने last year what we have seen in the Vidarbha region, it is coming under the severe critical. उन्होंने और बढ़ गया है. यदि हम देखें तो ये डाटा बढ़कर 30-40 हो जाएगा, 100 के आसपास पहुंचा सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो जो विदर्भा रीजन में कई डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर कई ब्लॉक्स होंगे. So this has been severe critical units has been increased over the period. और ये ज्यादातर आप लोग देखोगे कहाँ पे है? एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन, इस रीजन में ही दिस प्रॉब्लम्स आर देयर. 900 यूनिट्स ब्लॉक्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट. अंडरस्टूड इट? तो हमने क्या देखा? हाईली इंटेंसिव डेवलपमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर. जितना ग्राउंड वाटर हम लोग डेवलप करेंगे उतना ही एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता जाएगा. And groundwater development causes what is an exploitation of groundwater, decrease in the water table, and then inclusion of what? Sea water. Another I said that due to this kind of water development, groundwater development, what happened? Again, out of 6,000 units, 900 units are under the severe different kind of situation. जहाँ पर देखा जाए तो 70 to 100% क्या हो चुका है? वाटर, ग्राउंड वाटर ही डेवलप हो रहा है, सरफेस वाटर है ही नहीं वहां पर. तो आने वाला सिचुएशन कैसा है? वेरी worse. This is 70 to 100% situation is very worse. So 70 to 100% that we can be able to see that critical, semi-critical, और severe critical का मतलब ही है कि it will be completely 100%. Last year we have seen like Vidarbha, पानी था ही नहीं, ट्रेन से पानी जा रहा था. Delhi is sending water to this. Understood? So this is the condition. So we have been able to see this is an I said groundwater over exploitation. समझ में आ गया इसके बारे में? इसके पहले हम ग्राउंड वाटर इन इरिगेशन वी हैव सीन. अंडरस्टूड? कैसा सिचुएशन हो गया आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन, एंड क्या इलेक्ट्रिसिटी है, कैसे बढ़ा दिया टैंक इरिगेशन, कैनल इरिगेशन एंड ऑल, एंड हाउ मच सब्सिडीज. नाउ ग्राउंड वाटर एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन. नाउ कंड्यूसिव कंजक्टिव यूज, मतलब अदर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. उसके साथ साथ और कैसे वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम्स कुड बी ओवरकम. यदि देखा जाए तो इसका कंजक्टिव यूज क्या किया जा सकता है? ग्राउंड वाटर की वजह से वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम्स कुड बी ओवरकम इफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन फॉर इरिगेशन इन वाटर लॉग एरिया कैन हेल्प टू लोअर ग्राउंड वाटर टेबल एंड रिक्लेम अफेक्टेड सॉइल. जो मैंने आपसे बात की थी, यदि किसी रीजन में वाटर लॉगिंग हो रहा है, इसका मतलब दिस रीजन हैज व्हाट इज एन हाई ग्राउंड वाटर टेबल. तो हम लोग यहां से क्या करेंगे? ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट करेंगे, पानी को ग्राउंड वाटर से निकालेंगे, तो ऑटोमेटिकली दिस वाटर लॉगिंग एरियाज कैन बी रिक्लेम्ड फॉर द एग्रीकल्चर. अंडरस्टूड? Several groundwater flow modeling studies have focused on assessing the waterlogged areas and measures to control problems of waterlogging and salinization. तो पानी के थ्रू we can be able to, I said that the two things we can be able to see, I said that waterlogging and what? Salinization. और किसी में कम सॉल्ट कम है, सॉल्ट ज्यादा है, तो उसमें प्रॉपर इरिगेशन. सो कंडीसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर वी कैन बी एबल टू मेक इट व्हाट इज एन removing the which situation? Waterlogging situation, and as well as I said that salinization.
तो वाटर लॉगिंग जहां होता है वहां पे सैलिनाइजेशन तो होता है, पता ही आपको। वाटर लॉगिंग, पानी आता रहा, आप उसमें इरिगेशन दे रहे हो तो ऊपर से वाटर को थोड़ा सा वाटर प्रेट होगा, और एवरी 1 kg ऑफ वाटर इज 0.5 grams आर। So they are, what is in a water logging and salinization are together. Water logging and salinization are, तो if you are, what is in a groundwater table को निकालोगे वहां से, तो groundwater will go down and salt will be नीचे जाएगा, और ऊपर का what is in a, and I said that waterlogged area also removed. We can be able to reclaim the soil. Understood? And इसका मतलब है कि हमें बड़ा, I said that हमें कैसे चलना होगा, irrigation needs should be satisfied by judicious utilization of available canal water along with ground water. कहाँ पर मुझे ground water use करना है, and where I should use canal water, we should, what is in a judicious utilization should be there. Understood? So हम लोगों ने क्या देखा, कंजक्टिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, यस और नो। तो यहां पर एक बेस्ट हमें दिख रहा है कि हम लोग वाटर लॉगिंग एरियाज में वी शुड ट्राई टू डेवलप ग्राउंड वाटर सो दैट वाटर लॉगिंग एंड सैलिनाइजेशन कैन बी removed. Next one, I said that the model groundwater bill. Now we have to see some models based on the groundwater bill. अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, groundwater in irrigation, first groundwater over exploitation, और ये सारे क्वेश्चन हैं आपके, groundwater in irrigation. Next, groundwater over exploitation, जो कि sea water started entering and all. How many? 900 units. Thereafter, I said that groundwater and conjunctive use, जहाँ पे salinization and water logging, तो कुछ negative बोल रहा हूँ and some positive. And model देखा जाए. And then I said that it is very much necessary to regulate and control the development and management of groundwater. हमें एक तो develop भी करना है, ग्राउंड वाटर को निकालना भी है, और साथ में उसे मैनेज भी करना है, यस और नॉट। सो वी हैव टू वेरी गुड एट रेगुलेटिंग समझते हैं ना, कभी ज्यादा किया जाए, कम ग्राउंड वाटर को कम निकाला जाए, यस और नॉट। रेगुलेटिंग डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजन समझ में आ चुका। पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कंस्टिट्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है हमारे पास, और हर स्टेट में होना चाहिए और सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए। अंडरस्टूड इट, अंडरस्टूड। एंड देन अथॉरिटी शुड ईच स्टेट टू डिस्चार्ज देयर वेरियस फंक्शन, क्योंकि वही लोग अथॉरिटी में होना चाहिए, और इन अथॉरिटी के ऊपर कोर्ट का कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। कोर्ट शुड नॉट पुट द पॉइंट। उनके पास यदि आपके यहाँ आए और आपके पानी को बंद कर दिया गया तो पानी बंद कर दिया गया, आपने पानी आप दिखाओ प्रूफ किया मेरा पानी नीचे था तो अब मैंने इसलिए बंद कर दिया है, सिंपल। तो वहां पे अथॉरिटी नहीं है, पानी चलाओ यहाँ। सो आई सेड दैट इसमें कौन कौन से होंगे इस ग्राउंड वाटर अथॉरिटी में, चेयरमैन, अंडरस्टूड, एक वन पर्सन फ्रॉम सेंट्रल एजेंसी, अदर पर्सन व्हाट इज फ्रॉम द, आई सेड दैट स्टेट एजेंसीज, और सारे हर स्टेट में आई सेड दैट इन एवरी स्टेट देयर शुड बी एन, आई सेड दैट वन एजेंसी शुड बी ग्राउंड अथॉरिटी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एक हमारा स्टेट लेवल पे है, तो एक चेयरमैन हो, one person from the central agency, central groundwater board, and then several other person from the what is a state agency, and then there should be, I said, that person who has a knowledge about the groundwater and scientific knowledge, groundwater के knowledge हो आपको relating to this, other technical understanding persons. So these are the things required in the groundwater related what state body. क्या क्या होना चाहिए, chairman, central agency person, other state agency persons, more number of that person having a knowledge of groundwater and all, and other technical persons. समझ में आ गया, यही तो हमें जरूरी है। अब नाउ स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर होना चाहिए, व्हाट शुड बी द पावर, एक्वायर पावर टू रेस्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राउंड एब्स्ट्रक्शन स्ट्रक्चर बाय इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज फॉर ऑल पर्पसेस इंक्लूडिंग व्हाट ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक वर्क। रेस्ट्रिक्ट कंसर्न ऑफ व्हाट इज इन ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रक्शन, उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए पावर होना चाहिए, यस और नॉट, दे शुड हैव ए पावर और नॉट, सिंपल वन लाइन होना चाहिए, ये ना दे शुड रेस्ट्रिक्ट, कोर्ट के पास होना चाहिए तो उनके पास होना चाहिए। यदि कोर्ट में गए फिर तो लाइन लग गया, गेट माय पॉइंट। सो हु शुड हैव द पावर, स्टेट गवर्नमेंट शुड हैव पावर। ऑथोरिटी कैन डिक्लेयर एनी एरिया टू बी नोटिफाइड एरिया, किसी भी एरिया को नोटिफाइड एरिया बोल सकता है। सपोज सबसे ज्यादा पानी कहां यूज होता है,
अर्बन और रूरल एरियाज, एक रूरल होता है एक अर्बन होता है। रूरल से जैसे अर्बन की ओर हो रही है और रूरल अर्बन फ्रिंज आता है, इसका मतलब वाटर, ग्राउंड वाटर विल गेट चेंज। और जैसे ही गवर्नमेंट ने देखा कि द ग्राउंड वाटर इज गोइंग टू चेंज और वो रूरल एरिया स्लोली स्लोली अर्बन में थोड़ा सा कन्वर्ट हो रहा है, we'll have to make it notified area. We have to give it what? Some kind of township. So suddenly water का requirement change हो जाएगा. And then I said that authority can declare any area to be a notified area if it is the opinion that the controlling and regulating groundwater extraction and use of groundwater in that area is necessary. तो जैसे ही चेंज होगा तो ग्राउंड वाटर कितना चाहिए, उसका रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग तुरंत किसके अंडर में आ जाए? अंडर द व्हाट? अथॉरिटी। आप गांव में तो जाके नहीं कर रहे हो, कहां पे करना है हमें? जनरली ये सब कहां पे होगा? इन द रीजन ऑफ व्हाट? अर्बन एरियाज। तो ये सडनली अथॉरिटी कैन डिक्लेयर एनी एरिया टू बी नोटिफाइड विद द ओपिनियन दैट द कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग, उनको उनकी पावर में क्या है? कंट्रोल करना और रेगुलेट करना, कितना पानी कहां पे होना चाहिए, लाइसेंस एंड और एक्सट्रैक्शन एंड यूज ऑफ ग्राउंड वाटर इफ इन दैट एरिया इज नेसेसरी, वो उनको रेगुलेट करने के लिए, और उसके रेगुलेट करने के लिए तुरंत बोल देंगे ये मेरे अंडर में आ गया नोटिफाइड एरिया। Understood it? Who should have the power to declare it? Yes, groundwater authority. Who should have the power to what is restricted? Groundwater authority at the, and then anyone, चाहे वो small or marginal farmers हो, अब ध्यान से farmer, wishing to sink a well for any purpose, वो sink बनाना चाहते हैं well for any purpose within the notified area must obtain a permit. यदि वो रूरल अर्बन फ्रिज और वहां पे फार्मर है और फार्मर उस रीजन में बना रहा हो, किस एरिया में? इन द नोटिफाइड एरिया, क्योंकि ये रूरल अर्बन फ्रिज हो गया। एंड इन द व्हाट ही वांट टू मेक अ व्हाट वेल, सिंक अ वेल, मेकिंग अ व्हाट, दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम ग्राउंड वाटर अथॉरिटी. So, well, for any purpose within the notified area must obtain a permit from the authority. Such application for permit are to be considered by authority keeping in view the purpose of which water is to be used. किस लिए आप ये पानी को यूज करोगे? And accordingly permission will be given. दिल्ली में सभी लोग ग्राउंड वाटर लिए हुए हैं, किसने परमिशन लिया? कोई परमिशन नहीं लेता। ये सब चीजें पेपर में ही, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इट इज ऑन द पेपर। अंडरस्टूड? कोई नहीं पूछने जाता और कोई कंप्लेंट भी नहीं करेगा, बगल वाला सीवर वेल लगा देता। अभी वही बोल रहा था ना कि जो इतने ग्राउंड वाटर भी जो आपको वाटर सप्लाई करने वाले आते हैं, उनको इतना बड़ा बहुत टैंक होता है जिसमें पानी हमेशा आते रहता है, उनके पास सीवर वेल लगा हुआ है। 1000 लीटर 5 मिनट में पानी टंकी भर जाएगा, 5 मिनट में। और आप लोग जो लगाते होंगे आधा घंटा में भरता होगा। वो पानी इतने प्रेशर से 100 फीट पे नीचे सीवर वेल लगा दिया, अंदर पानी आ गया। सो अगेन आई सेड दैट नोबडी नोज, no permission that people want, nobody is putting finger on it, and the extraction of groundwater is very high. देख रहा, सिचुएशन इज गेटिंग वर्स। तो हमने क्या देखा? फार्मर्स को भी देख लेना होगा, कहां पे? इन विच रीजन? नोटिफाइड एरिया में। अंडरस्टूड? इफ द फार्मर, बिकॉज द नोटिफाइड एरिया इज इन अ काइंड ऑफ व्हाट? कन्वर्टिंग इनटू टाउनशिप। अंडरस्टूड? दिस इज द मॉडल। हम लोग क्या कर रहे हैं? पहला क्या पॉइंट किया था हमने basic idea we have taken, then we have taken what is a groundwater in irrigation, then we have seen groundwater and over exploitation, then we have seen groundwater conjunctive use, and then we are seeing groundwater, I said that model, यही तो मॉडल होना चाहिए। Understood? And then we are also seeing like this, every existing user of groundwater in the state should apply to the authority for a certificate for registration recognizing its existing use and then authorizing continued use of groundwater. है? नहीं है ना? किसी के पास नहीं है। Authority is vested with the power to cancel any permits, registration or licenses. Permit, power, licenses. Authority exploitation of groundwater resource does not exceed the natural replacement to the aquifers. किसी भी रीजन में ग्राउंड वाटर जो रिप्लेनिश होना है, उससे क्या होना चाहिए? उससे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अथॉरिटी टू नॉट टू यूज द वाटर इन दैट एरिया। आई सेड वेयर एवर देयर इज अ मिसमैच, स्टेप्स शुड बी टेकन अकॉर्डिंगली। अथॉरिटी शुड ऑलवेज अपडेट द डाटा। अभी अथॉरिटी की बात आ गई, वो डाटा बेस ही नहीं तैयार करते हैं, अच्छा डाटा बेस नहीं, और तैयार भी करते हैं तो कोई नहीं, जाके बाबू साहब लोग बैठे रहते हैं।
टू इंप्रूव ग्राउंड वाटर अथॉरिटी आइडेंटिफाई द रिचार्ज वर्दी एरियाज, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए रिचार्ज वर्दी एरिया है, और आपको हमारे पास आना चाहिए उन्हें और बोलना चाहिए दीज आर द मेथड्स आर देयर, गवर्नमेंट इज गिविंग दिस मच ऑफ सब्सिडी, और आप ऐसा वाटर हार्वेस्टिंग करें सो दैट द ग्राउंड वाटर शुड रिचार्ज. दे शुड एजुकेट अस, they should subsidize the things to us. Authority promote, and then I said that identify the recharge worthy area and issue guidelines for adoption of rainwater harvesting. कर रहा है कोई, करता है नहीं. चलो अगले, पहले तो हम देख रहे थे पीपल की गलती. On the side of what? Authority, ground water authority, they are not doing. Another, इन लोगों को क्या करना चाहिए? Authority should also go for promotion of mass awareness and some training programs on artificial recharging of groundwater through the government और NGO educational institution. कौन हमें आके बता रहा है कि ग्राउंड वाटर में आप अपना यदि रूफ पे रेनफॉल हो रहा है तो उसके पाइप को नीचे कनेक्ट करो. जैसे आप लोग क्या बनाते हो, अपने टॉयलेट के पास एक सोखता बनाते हैं, पानी नीचे जाते रहता है. सिमिलरली इफ देयर इज in the rooftop, if the rainfall is taking place, तो जितना पानी होता है it will go into what I said that in the somewhere. And another I said that हमारे पास क्या दिखता है, lots of, हम लोग क्या देखते हैं in the road areas rainfall होता है, suddenly water logging areas. तो हमें nearby